uh, next question of binomial theorem. बच्चों already completed the 4 to 5 chapters, quadratic equation, binomial, complex number, permutation combination, and sequence series that just completed in last week. Next chapter is started the binomial theorem and is already fourth question is completed. Next question is the fifth question. So let's start fifth question of binomial theorem. Basically, question is given: suppose A and B is the coefficient of 30th and 12th term of respectively the binomial expression. So any binomial expression, how to the 13th term? So T30 or T30 means NCR minus 1. Is meaning is NC 29, right? And is given that if 2a is equal to 2b is a given relation between both the coefficient 2a and 2b is then find the n. Okay, so firstly the arrange that. So 2 and a value is coefficient of 30 term is 2n minus 1 c 29, correct, as well as 5 times of is like this 2a equal to 5b. So arrange that. So next is 2n minus 1 and a c 11, right? If is a equal in any value of n, then is the answer, correct now? So why your soul in a same way you can check the optionally, put the value firstly 22, 20, 21, and 2090. So firstly I will try that. Suppose I will check that 20 first is not starting from b option. You also always check the firstly b and c option, then after the check the a and d option, right? So firstly I will check the 20. So firstly arrange that 2 is a 2, right? 2n minus 1 factorial, the both are cancel out because the ncr is the meaning is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial is the formula of ncr. So that's why 2n minus 1 factorial divided by 2n minus 1 minus 29 factorial and 29 factorial, okay, as well as 2n minus 1 factorial and divided by 2n minus 1 minus 11 and 11 factorial, correct. Is a very easy process. Is a just 2n minus 1 and 2n minus 1 factorial cancel out. After that you can apply suppose n equal to 20, hit and trial method. So firstly the d option, check that d n equal to 20, put that value. So 2 upon 2n minus means the 40 minus 30, because the 2n minus 1 is the 30 right now. So 40 minus the 10 factorial and the 29, so 29 is the 29 factorial, correct. And according to this 5 times and 2n minus 12, so 2n minus 12 means 40 minus 12, so 40 minus 12 is 28 factorial and 11 factorial. So that's why if you use the any support, suppose you can convert to 29 into 28 factorial, so that time 28 28 cancel out. uh, Same is that use the 11 into 10 factorial 10 factorial 10 factorial cancel out, but that time is also not equal because not cancel out, not cancel out, so either not satisfy that. So put n equal to 21, right? So that time is 20 11 21 into 42, 42 minus 30 is the 12, right? 29 factorial as well as equal to 5 times put the 28 minus 12, so 22 5 minus 12 is the 30 factorial and is the 11. Same apply that, is the convert to 30 into 29 factorial, so 29 and 29 factorial cancel out that time, okay. Same time you can convert to 12 into 11 factorial, so 12 factorial 11 sorry is not cancel out, 12 is not cancel out, 11 factorial is cancel out 11 factorial, correct. Okay, so remaining is only 2 by 12 and 5 by 30, correct. 2 by 12 is the 1 by 6, then is also 1 by 6. So if the region is n equal to 21 is the correct option. So n equal to 21 is the correct option, right. So बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तब आप ट्राई टू check option is a better option, because
If your solve is a very difficult, suppose the in terms of n is the manage the factorial is very difficult that time. Okay, so next question इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। बच्चों आपका जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए हैं आपका पीवाईक्यूज उसका सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड है। आप यहाँ पे नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम से आप सारी वहाँ से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। मैं जब भी चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है तो उसका पूरा पूरा पीडीएफ विद सॉल्यूशन वहाँ पे सेंड कर देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यूट्यूब पे आके तो आप वहाँ से भी सॉल्यूशन से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ से सॉल्यूशन से समझ में नहीं आ रहा तो आप उसकी वीडियो यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। सो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका फॉर सम एंड डज नॉट इक्वल टू 10 द लेट द कोएफिशिएंट ऑफ 5 5th and 6th and 7th terms of binomial expression is given that 1 plus x power n plus 4 b is the AP, right? Arithmetic progression. Then the largest coefficient of expression, इस coefficient का largest coefficient पूछा है, सॉरी इस expression का largest coefficient पूछा है। So सबसे पहले बच्चों देखो क्या बोल रहा है उसने, उसको फॉलो करते हैं। AP में क्या है? फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है एंड 7 टर्म्स इज द AP. Okay, so how to manage that? So according to this one, sixth term is a fifth, sixth and seventh term is the AP, right? So how to manage that? So any three terms in the AP then is managed B is equal to A plus C divided by 2, correct? So same time is the manage that. So sixth term equal to fifth term plus seventh term divided by 2, correct? According to this one, n is equal to n plus 4, so n plus 4 C5, because NCR is the NR plus 1 terms the NCR, correct na? So that's why is the 5. Same is the n plus 4 C4 or n plus 4 C6 and divided by 2 is according to that is the arranging. Okay, so firstly solve that again, and the 2 is shifting to this side, or n plus 4 factorial and divided NCR factorial is the NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial and r factorial, करेक्ट बच्चों? ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पुट करते हैं तो n plus 5 सॉरी n plus 4 minus 5 is n minus 1 factorial, right, and the 5 factorial, करेक्ट, and equal to यहाँ पे कितना n plus 4 factorial and divided by n plus 4 minus 1 in the n factorial and 4 factorial plus n plus 4 factorial and divided by 6, so n minus 2 factorial और 6 फैक्टोरियल। ओके बच्चों, अब एक काम करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। देखो फैक्टोरियल का मतलब आप समझो कि फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4, मतलब इसमें 5 फैक्टोरियल भी इंक्लूडेड है, याद रखना। तो एलसीएम कैसे आएगा? देखो एलसीएम आ जाएगा, सबसे पहले तो इनका देखते हैं बेटा। देखो एन फैक्टोरियल में भी n माइनस 1 भी इंक्लूडेड है, n माइनस 2 फैक्टोरियल भी इनको इंक्लूडेड है, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 ऐसे चलता जाता है ना, तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है। इसका मतलब मैं n फैक्टोरियल और यहाँ पे हाईएस्ट इज 6 फैक्टोरियल आपको एलसीएम ले लेता हूँ, राइट ना बच्चों? ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, जब एलसीएम आ गया हमारा तो क्या यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, ये तो 2 तो है ही सही। उसके बाद यहाँ से देखो अपन ने 5 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 5 फैक्टोरियल में तो केवल 6 बचता है, राइट ना? और n माइनस 1 में से n माइनस 1 n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो n माइनस n बचता है ओनली। तो यहाँ पे ये देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट ना? सो बचा क्या n इंटू 6। देखो ये बहुत समझने वाली बात है बच्चों। देखो यहाँ पे बचने का क्या, देखो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल क्या होता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, इस टाइम पे 6 बचा ओनली। सेम n फैक्टोरियल कितना होता है n इंटू n माइनस 1, सो n माइनस फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, n बचा ओनली। तो सेम यहाँ पे भी n फैक्टोरियल है ही ऑलरेडी, 6 और 4 में से कितना बचेगा 6 इंटू 5, करेक्ट बच्चों? फिर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका n माइनस 2 तो कहे ना, तो 6 में से 6 फैक्टोरियल तो नहीं आएगा, तो n इंटू n माइनस 1, करेक्ट? अब एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाता है इक्वल के दोनों साइड, तो केवल क्या बचा आपका 2
ये हो गया आपका 12n, 12n, और ये कितना हो गया बच्चा आपका 30, और ये कितना हो गया एन स्क्वायर माइनस एन। करेक्ट बच्चों। अब आपको एक साइड में शिफ्ट करना है तो सबको एक साइड में लेके चले जाओ, तो 12 इधर आ जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0। अब 30 के आपको तीन पार्ट करने हैं, दो पार्ट करने में एडिशन पे 13 आना चाहिए, तो एन माइनस 10 और एन माइनस 3। राइट बच्चों, इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि एन डज नॉट इक्वल टू 10, सो दैट्स वाई एन इक्वल टू 3। जब आपका एन का वैल्यू आ चुका है तो आप इजीली रख के हाईएस्ट टर्म निकाल सकते हो। देखो एन का वैल्यू जैसे रखोगे कितना जाएगा 7, और 7 में से सीधा सिंपल है कि 4 टर्म आपका मिडिल टर्म होता है, और मिडिल टर्म ही हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है, राइट ना बच्चों। तो आप जैसे यहाँ पे रखोगे तो एन प्लस 4 टर्म्स है टोटल, तो कितनी हो जाएगी 3 प्लस 4, 7 टर्म्स हो जाएंगी। और बच्चों 7 में से मिडिल टर्म आपको भी पता है कि मिडिल टर्म हाईएस्ट होता है, तो 7c4 निकाल लेते हैं। 7c4 कैसे निकालेंगे, इसका ही कोफिशिएंट पूछा है 7c4 का, तो 7c4। अब 7c4 कैसे निकालते हैं बच्चों, इजीली 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 एंड 4 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल मैं एक बार डिनोट कर देता हूँ। तो देखो मैं इसको लिखूंगा 7 6 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करूंगा, ठीक है, और 3 2 1, करेक्ट ये वाला, तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इंटू 5 35। सो आपका आंसर आ गया 35। देखो क्वेश्चन ईजी है, आप अकॉर्डिंग टू मेथड जाओगे कि आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करोगे तो आप इजीली क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाओगे। मैंने वही किया, क्वेश्चन जैसा था उसको अकॉर्डिंग टू, देखो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना बेटो तो आपका फॉलो ही काम आपका करता है। आपको अगर फ्लो बना हुआ है तो वही फ्लो आपका काम करता है आपका एग्जाम में। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका फ्लो बनेगा, और फ्लो बनेगा तो वही एग्जाम में काम करेगा। आप कोई मेथड रटते हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट को मतलब ट्रिक याद रखते हो, बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चों की जैसे आप एक ही ट्रिक को 5 से 10 बार किसी क्वेश्चन में याद रख सके और वो वहां पे आ जाए और आपको पता लग जाए कि इसमें अप्लाई करना है और फिर आप उसमें अप्लाई कर सको, तो ये बहुत बड़ी चांसेस है। तो आपको उस वे में काम नहीं करना है, आपको एक सिंगल वे में काम करना है जहां से आपके 30 के 30 क्वेश्चन, 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व हो सके सॉरी। तो उस फ्लो को बनाए रखने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। और फ्लो ऐसे ही बनता है बच्चों की, बस क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग चलो, पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो एनालिसिस भी आ ही जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आपका क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि इफ n इज द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स पावर p 1 minus x power q is the coefficient of x and x square are 1 and minus 2 respectively, then the p square plus q square equal to okay। सो फर्स्ट में से इन्होंने देखा कि जो फर्स्ट है ना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस टर्म का x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड 2 है, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ को क्या है ये, यहाँ का जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं तभी तो हम निकाल पाएंगे पावर क्यू। तो इसका जनरल टर्म लिखो तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये पी एन सी आर वन ले लो फर्स्ट के लिए, और एक्स का पावर आर वन हो जाएगा। सेम दूसरा क्यू एन आर टू और माइनस वन पावर आर टू, और यहाँ पे सेम एक्स का पावर आर टू हो जाएगा। राइट बच्चों, ये मैंने जनरल टर्म लिख दिया है। अब यहाँ से देखेंगे कि पहले एक्स का टर्म कि एक्स का कोफिशिएंट क्या हो सकता है, फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर का। तो एक्स का कोफिशिएंट लिया तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया आर वन, और यहाँ पे कितना हो गया आर टू, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया। तो एक बार तो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 1, और सेकेंड टाइम आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, यहाँ पे मेरे को एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स पावर 1 एंड एक्स स्क्वायर, सो दैट्स वाई। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है बच्चों। मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ठीक है। आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 1 का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों आपको आर वन आर टू, आर वन जीरो हो जाए, आर टू वन हो जाए, और आर टू वन हो जाए तो ये जीरो हो जाए, बस इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। अब जबकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो पी सी जीरो हो जाएगा, तो पी सी जीरो तो आपका वन ही होता है, राइट ना। और क्यू सी आर क्यू सी वन हो जाएगा, तो क्यू सी वन हो जाएगा आपका क्यू, करेक्ट ना, तो ये आ गया क्यू। ऐसे यहाँ पे पर देखो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप टू आर टू का वैल्यू माइनस वन वन रखोगे ना तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू आएगा ना कि पॉजिटिव क्यू, राइट ना, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा आपका।
राइट ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, तो पी सो ये तो पी हो ही जाएगा, पी सी जी क्यू सी जीरो वन हो जाता है, और पी सी वन आपका पी हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आया। अब इनका सम कितना हो गया, पी माइनस क्यू, और पी माइनस क्यू इसने गिवन है बेटा, इनका सम वन, करेक्ट, वन गिवन है, करेक्ट। तो एक आपके पास इक्वेशन आ चुका है कि पी माइनस क्यू इक्वल टू वन, ठीक है। तो दूसरा ट्राई करते हैं, आर वन प्लस आर टू वन कैसे बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बच्चों क्या क्या कैपेसिबिलिटी हो सकती है आर वन प्लस आर टू की। तो पहले तो ये जीरो हो जाए, ये टू हो जाए, ये टू हो जाए, ये जीरो हो जाए, राइट। ये तो हो गया। अब वन वन भी तो हो सकते हैं, दोनों वन वन हो जाए, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती नहीं। तो बस इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यूज करते हैं हम इसका। देखो पहले जीरो किया तो ये तो सीधा आपको पता है कि वन हो गया, और क्यू में जीरो किया, क्यू में, तो क्यू में क्या हो जाएगा, क्यू सी टू, राइट ना। अब क्यू सी टू लोगे तो बता यहाँ पे पावर पॉजिटिव आएगी, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो ये पी सी टू हो जाएगा, आर का वैल्यू, राइट ना। और यहाँ से पी सी वन एंड पी सी वन, और ये माइनस आएगा बच्चों की, और क्यू सी वन, राइट ना। बिकॉज क्यू की पावर वन होगी तो इवन ऑड पावर होगी, और ऑड पावर की वजह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इनका सम कर लेते हैं, क्यू सी टू प्लस पी सी टू प्लस पी सी वन एंड क्यू सी वन इक्वल टू माइनस टू। इसने गिवन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का सम माइनस टू है, ठीक है बच्चों। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट ना। क्यू फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्यू माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, राइट ना। मैं इसको ऐसा सोल्व, चलो पहले कर लेते हैं। और यहाँ से भी पी फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ से क्या आएगा आपका, पी माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, सेम ये आ जाएगा पी, और ये आ जाएगा क्यू इक्वल टू माइनस टू, ठीक है बच्चों। यहाँ का सोल्व करते हैं तो इसको क्यू इंटू क्यू माइनस वन लिख सकता हूँ मैं, और नेक्स्ट आएगा क्यू माइनस टू फैक्टोरियल जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई टू। सेम इसको भी लिख सकता हूँ मैं, पी इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाई टू, क्योंकि यहाँ पे पी माइनस टू फैक्टोरियल आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इक्वल टू पी इंटू क्यू इक्वल टू माइनस टू, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी, टू टाइम्स पी क्यू इक्वल टू माइनस फोर। मैंने एलसीएम ले लिया और इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अलग है आपका, अ, और क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन था बच्चों, याद रखना, इसको भूल मत जाना, ये माइनस था, यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो मैं किस किस का यूज कर सकता हूँ। देखो मैं इसका इसका और इसका यूज करूंगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर, क्यू माइनस पी होल स्क्वायर, राइट बच्चों। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं क्यू कॉमन ले लेता हूँ तो क्यू प्लस पी बच जाएगा माइनस कॉमन लेने पे, और माइनस फोर ऑलरेडी है इधर, ठीक है जी बच्चों। ठीक है। अब देखो इसमें से अगर मैं क्यू कॉमन लेता हूँ बच्चों, क्यू प्लस पी कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका क्यू माइनस पी माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर, राइट ना। तो क्यू इक्वल टू फोर, ये तो माइनस फोर नहीं हो सकता, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू प्लस पी तो कॉमन आ गया। एक मिनट, यहाँ से ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे तो ये गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बच्चों। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है। जैसे मैंने पी कॉमन ले लिया और क्यों माइनस फोर के इक्वल हो गया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी नहीं बन सकती, अगर मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को पी माइनस क्यू फॉर्म में, करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ और लगाना पड़ेगा, क्यू प्लस पी माइनस कॉमन एंड माइनस फोर, ठीक है। यहाँ से क्यू प्लस पी अगर मैं कॉमन लेता हूँ, क्यू प्लस पी तो कॉमन आता ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। और थोड़ा सा गड़बड़ कहीं हुई के जो चेक कर लेते हैं बच्चों। हाँ, क्यू माइनस पी टू क्यू, क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे क्यू प्लस पी है, ठीक है। माइनस फोर हो गया,
क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू माइनस पी हो गया, और क्यू माइनस पी ये प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे -4 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं बन पाई बच्चों। अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँ कि क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी का वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना बच्चों 1 यहाँ पे, तो ये इजी हो जाएगा। क्यू माइनस पी का वैल्यू पुट कर दिया मैंने 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी, करेक्ट, और इक्वल टू -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, ये इधर की शिफ्ट है तो -4 + 1 5 हो जाएगा। तो एक वैल्यू यहाँ से आ गई, मैंने यहाँ से ये पुट करा था वैल्यू, ठीक है। तो क्यू प्लस पी 5 आ गया, क्यू माइनस पी -1 है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। क्या आ जाएगा, क्यू प्लस पी आपका कितना है 5 है, तो आप एक बार ऐड करके डिवाइड बाय 2 सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2, तो ऐड करोगे तब p का वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे p आ गया, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 + 2 डिवाइड बाय इधर 3 आ जाएगा, और q का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 - 2 डिवाइड बाय 4, यानी कि 2 वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो आपका p का वैल्यू आ चुका है, q का वैल्यू आ चुका है। आपसे पूछा क्या था बच्चों, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। सो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका ये 9 + 4 13, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, जब जेईई मेंस इससे पहले क्वेश्चन देता था बच्चों, तो आपको यहाँ तक ही सीमित करता था कि आपको यहाँ से एक या तो एक ही पैटर्न देता था, या फिर यहाँ से ही क्वेश्चन को खत्म कर देता था कि नहीं आप केवल डिस्क्राइब करो कि कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट इसने थोड़ा सा और लेंदी किया इसको, उसको इक्वल भी दिया, वहाँ से उनका सम का भी कुछ दिया, तो यहाँ पे आपका 2 से 3 स्टेप हो गई इसकी क्वेश्चन की, कि फर्स्ट स्टेप में आपको केवल R1 R2 कवर करना है, फिर सेकंड स्टेप में आपको उसको इक्वल करके वहाँ से क्यू पी का वैल्यू भी निकालना है, फिर क्यू पी का वैल्यू के लिए भी 2 इक्वेशन बनाई उसने। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंदी तो कर दिया, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इसको, लेंदी बोल सकते हैं। जैसा उसने क्वेश्चन ने दिया अपन ने फॉलो किया, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द ऑल द रेशनल टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। आपको जितने भी इसके रेशनल टर्म्स, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन इसके रेशनल टर्म्स के थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एलसीएम मेथड्स होते हैं। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है बच्चों, 2 टर्म्स नहीं है, 2 टर्म्स में तो आप इजीली एनसीआर लगा सकते थे, बट 3 टर्म्स में लगाना डिफिकल्ट है। पर इसका क्या मतलब होता है, देखो रियल में अगर इसका मतलब समझो कि आपको 6 में से 3 टर्म्स 3 चूज करना है, तो इसका क्या मतलब होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जैसे इसकी पावर 1 की पावर कुछ भी नहीं, तो इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ चलो, और बीटा सेकंड, और गामा थर्ड, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई भी होता है आपको पता हो तो, 1 पावर अल्फा, 2 पावर 1/3 पावर बीटा, एंड 3 1/2 पावर गामा, राइट ना। और इसका यूज करते हैं कि ये इसका एक्चुअली मीनिंग यही होता है कि 3 टर्म्स में से इसको डिवाइड करना है, और यहाँ पे रेशनल टर्म्स आना चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनको निकाल के अपन इसका सम कर लेते हैं, राइट बच्चों। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्फा बीटा गामा की, वो देखते हैं हम, है ना। चलो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्फा बीटा गामा की। तो अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। देखो जैसे स्टार्टिंग में मैं ले लूँ, ये 0 हो सकता है बच्चों, ये 0 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, राइट ना। और यहाँ पे देखो आप, अगर 6 होगा तो 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे रेशनल तो बनता ही है, राइट। फिर देख मैं देखूँ यहाँ पे ये 0, ये 6 और ये 0 हो सकता है। यहाँ पे 6 लेने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि 3 से डिविजिबल हो जाएगा बीटा, तो यहाँ पे भी 6 बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद ये 6 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तब भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक तो सीधा सीधा पैटर्न, 3 पैटर्न तो यही आ गए आपके, राइट। अब और देखते हैं, ये 0 बन जाए, ये 2 बन जाए, ये 4 बन जाए, नहीं बट ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 4 बन गया तो बीटा की पावर 4 में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, राइट ना। उसके बाद क्या बन सकता है, यहाँ पे 4 बन सकता है कि 4 बीटा की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती। यहाँ पे 3 हो सकती है बच्चों, बीटा की वैल्यू 3 तो रख सकते हैं। अगर बीटा की वैल्यू 3 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 भी हो सकती है, बट 0 का एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो 3 और यहाँ पे भी 3 नहीं रख सकते ना, तो यहाँ पे तो 3 रख सकते हैं बच्चों, पर 3 3 0 भी तो हो सकती है। आपको इसकी वैल्यू 3 हो जाए और इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। और क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे 1 ले लूँ, यहाँ पे 3 ले लूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। देखो आपको पूरी पॉसिबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। अब सम आपको 6 होना चाहिए, बस यही तो है, ठीक है। 3 1 2 ले लिया, अब और क्या आप सोचो कि क्या हो सकता है, और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, जैसे 1 3 2 भी हो सकती है। 1 3 2 के बाद आपका 3 2 3 2
3 2 तो ले चुके हम, 0 0 3 ले चुके हैं, 6 लेके और क्या हो सकती है, यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 भी तो हो सकता है, राइट बच्चों। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है कि गामा की वैल्यू 4 रख दो तो मैं सम हो जाए, राइट बच्चों। और कितनी हो गई है, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और कुछ हो सकता है क्या, काउंट करो देखे। बस यही इनफ है बच्चों, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। और भी आप अगर सोच सके तो क्या सोच सकते हैं अपन कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज, और 6 4 0 हो गया, 6 4 0 के बाद आपका कितना हो गया, 3 0 3 0 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, 4 2 हो गया, 2 4 हो सकता है, 2 4 हो गया, 4 2, 2 4 4 2 भी तो हो सकता है बच्चों। देखो यहाँ पे जब 2 4 हो गया तो 4 2 भी तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ये भी। तो एक पॉसिबिलिटी ये बच रही थी, बस इसका सम कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे वैल्यू रखनी है आपको 6 फैक्टोरियल, कॉपिसेंट पे ही आपको कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 6 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। क्योंकि आप जब यहाँ पे रखोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल तो हमेशा 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, 2 और 3 भी कैंसिल फैक्टोरियल रहेगा, जब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, 6 में आपका रखा तो यहाँ पे 6 0 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल रखने पे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या यहाँ पे, गामा की वैल्यू 6 रखोगे तो यहाँ पे 3 पावर 2 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 3 पावर 2, सॉरी 6 पावर 2, 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 कितना हो जाएगा पर 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, राइट। फिर आप बीटा की वैल्यू 6 रखोगे तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 6 रखने में कितना जाएगा, 3/2, और 3/2 कितना होता है आपका 2, तो 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, राइट ना बच्चों। ठीक है, अब अगर गामा की वैल्यू 6 रखोगे तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता, राइट ना। यहाँ पे 3 रखने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू 3, तो 3 फैक्टोरियल ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू इसका वैल्यू 3, तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से केवल 2 मिलेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट होगा तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 6 × 5 × 4 टाइम्स, राइट ना। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 ये कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 40, राइट। यहाँ पे रखते हैं तो 6 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट ना। और 3 जब मैं यहाँ पे रखूंगा बच्चों तो 3 रखने पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखने पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 से ये 6 × 5 × 4 टाइम्स, राइट ना। और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स ओनली, तो कितना हो गया आपका, कैलकुलेट करो तो 4 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 60, राइट बच्चों। तो ये भी इजीली इजी हो गया 1 3 2 से। देखो बच्चों थोड़ा सा दिक्कत तो है, 120 हो जाएगा बच्चों, ये 120 क्योंकि एक 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे रखोगे आप तो 2 से कुछ नहीं होगा, बट इससे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, राइट बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट होगा, 6 × 5 का टाइम, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 3 जा आपका 45 हो जाएगा, 45 × 9 हो जाएगा, 45 × 9 हो गया 135, राइट बच्चों। इसको करोगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से कुछ नहीं होगा, बट यहाँ से 2 से 3 तो आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे रखने पे 3 वाले में, तो फैक्टर फैक्टर से ये कैंसिल आउट हो गया 6 × 5, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, राइट बच्चों। और इनका सम कर सकते हो फिर आप, वो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसका सम कर लोगे तो इजीली आंसर भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो। तो जब अब इनका सम करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, सम करके देखो आप यहाँ पे, तो कितना लूँ मैं 1 +40 +120 +135 130, देखो कुछ भी आपका मिसिंग हो जाएगा तो बच्चों गड़बड़ 100% होना है, इसलिए आप कोशिश करो कि मिसिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप कितने 1 2 3 4 5 6 7, आप देखो 1 2 3 4 5 6, एक वैल्यू आपका मिसिंग हो रहा है, कौन सा 1 2 3 4 5 6, एक वैल्यू आपका किसी को हो जाए, कोई ना कोई सा मिसिंग हो रहा है, ये 1 है, ठीक है। ये 27, सॉरी उसके पहले भी 4 + 27, एड करो इनको कितना आता है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग अभी भी है, क्योंकि
वैल्यू 600 समथिंग आप आपके आना चाहिए इसका। मैंने जब इसका सॉल्यूशन देखा था, तो आप देख लेना एक बार इसका कौन सा आपका रिमूव हो चुका है या फिर कौन सा इसमें से नहीं आ पा रहा है इससे। जब आपको 3 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 रखने पे यहाँ पे 3 भी आएगा बच्चों, राइट ना। तो ये आप कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा, ये 120 नहीं आएगा, ये आपका 360 आ जाएगा, 60 इंटू 2 इंटू 3, राइट। राइट, 15 60 एंड 60 ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे 360 हो जाएगा बच्चों आपका। बाकी तो आपका सही है, आपको इनको सम करके देख लो, आपका आंसर आएगा। तो आपका 1 + 45 आपका आंसर आ जाएगा 612, राइट बच्चों। 12 12 4 40 360 एंड 30 करेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों आपके कि आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है कि आप 3 में तो काफी दिक्कत आती है। 3 में तो आप जितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है कि कुछ मिसिंग हो जाए बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट किए हैं। इनका पीडीएफ भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपके प्लेलिस्ट भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सीक्वेंस सीरीज भी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उनके भी पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।